اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سوم تاریخ اہل بیت امام رضا علیہ السلام۔ میں آپ تمام محترم طلاب اور طالبات کی خدمت میں عرض سلام و احترام کے بعد یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا امام رضا علیہ السلام کے متعلق تاریخ اہل بیت عنوان کے تحت جو درسی سلسلہ ہے وہ ایک اہم موڑ میں وارد ہو رہا ہے، جہاں ہم کچھ تجزیاتی اور تحلیلی گفتگو امام کی تاریخ کے سلسلے سے سیاسی پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھ کے کریں گے، تاکہ امام نے جو مدینے سے نیشاپور تک کا سفر کیا ہے اور پھر اس کے بعد طوس کی سرزمین میں وارد ہوئے اور ولایت عہدی کا جو زمانہ امام کی زندگی کا اہم ترین زمانہ گزرا ہے، اس کا پس منظر واضح ہو جائے، اس کے حقائق کی طرف کچھ روشنی ڈالی جا سکے۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ امام رضا علیہ السلام کی امامت ایک اہم مسئلہ ہے۔ امام نے اپنی زندگی کے تقریباً 35 سال اپنے والد محترم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ گزارے، اور ظاہر سی بات ہے ہمارا ہر امام پیدائش سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس تک اپنے تمام کمالات سے مزین ہوتا ہے، لیکن اس امام کے عملی آثار، فعالیتیں، ایکٹیویٹیز جو زیادہ سامنے آتی ہیں وہ اس وقت سامنے آتی ہیں یا اس وقت اس کو اہمیت زیادہ حاصل ہوتی ہے کہ جب اس امام کی امامت کا دور ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے گزشتہ امام جب ان کے پہلے والے امام موجود ہیں تو زیادہ تر جو اعمال و افعال اور جو واقعات سامنے آتے ہیں، جو کتابوں میں درج کیے جاتے ہیں، وہ پہلے والے امام کے متعلق ہوتے ہیں، اگرچہ بعد میں بننے والا امام بھی اپنی خدمتیں اپنے گزشتہ امام کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ ہو کر کے انجام دیتا رہتا ہے۔ یہی حال امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا بھی ہے۔ آپ کے والد محترم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خاص کر اس زمانے میں کہ جب قید و بند کی زندگی گزارنے میں مجبور تھے اور آپ کو بغداد میں، کاظمین میں، ان علاقوں میں بلا لیا گیا تھا، اس وقت امام رضا علیہ السلام نہ صرف یہ کہ اپنے کنبے والوں کے ساتھ بلکہ شہر والوں کے ساتھ ایک رہبر کی طریقے سے زندگی گزار رہے تھے اور بہترین قیادت معنوی اور روحانی کا اور اجتماعی کا ثبوت دے رہے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جس زمانے میں قید خانے، آپ جانتے ہیں کہ بہت طویل عرصے تک 7ویں امام کو قید خانے میں ڈالا گیا اور بار بار اسیر کیا جاتا تھا، زندان میں ڈالا جاتا تھا، اس وقت قوم کی رہبری اور خاص کر اپنے کنبے کی قیادت امام رضا علیہ السلام بحسن و خوبی انجام دے رہے تھے۔ اور امام رضا علیہ السلام کے اگر ہم دیکھیں گے اماموں کی تاریخ میں تو سب سے زیادہ بھائی بہن خود اپنے گھر میں جن کو رہنمائی کی ضرورت ہے، خود اپنے گھر میں امام رضا علیہ السلام کے 36 بھائی بہن موجود ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اماموں کی فہرست میں سب سے زیادہ اولاد کے مالک ہیں، صاحب اولاد ہیں، یعنی آپ کے بیٹی اور بیٹے ملا کر کے 37 بچے ہیں، اور ان 37 بچوں میں الگ الگ روایتیں ہیں، 17، 18، 19 کی، لیکن ایک روایت مشہور روایت کے اعتبار سے 19 بیٹیاں اور 18 بیٹے یا برعکس۔ بہرحال 37 کل ملا کر کے 33 سے 37 تک کی روایت ہے، یہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں۔ ظاہر سی بات ہے گویا 36 بھائی بہن امام رضا کے ہیں۔ ان کو امام رضا علیہ السلام نے اس طریقے سے رہنمائی فرمائی، اس طریقے سے تربیت کی کہ قید خانے میں جب امام موسیٰ کاظم ہیں تو معنوی اعتبار سے ان کے امام رضا کے بھائی بہنوں کو
किसी रहनुमाई की कमी का एहसास नहीं हुआ। और इमाम रज़ा के भाई और बहन भी सब एक से बढ़कर एक कमाल वाले थे। आपको पता है अक्सर मशहूर व मारूफ़ हैं, चाहे वो मासूम क़ुम हों जिनका रोज़ा इमाम रज़ा की हमशीरा का रोज़ा क़ुम में है और ज़ियारत गाह ख़ास व आम बना हुआ है, या आपकी एक हमशीरा जो बाकू में हैं अज़रबैजान में, वहाँ उनका रोज़ा यानी मासूम क़ुम के तरीक़े से दूसरी साहिब कमाल, अगरचे मासूम क़ुम की हैसियत की मालिक न थीं लेकिन बहरहाल बाकमाल ख़ातून थीं, उनकी एक हमशीरा में बाकू में हैं। इसी तरीके से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के एक भाई शिराज़ में हैं, उनका भी एक बहुत इल्मी पस मंज़र है जो मशहूर है। तो ऐसी शख्सियतें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ आगे बढ़ रही थीं। और फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जब 20 साल जो इमाम की इमामत का दौर है, यानी जब आप तकरीबन 35 साल के हुए, उस वक्त सन 183 हिजरी में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद से लेकर के सन 203 हिजरी तक तकरीबन 20 साल का अरसा जो है, वो 20 साल का अरसा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत का अरसा है। और इसमें से आपने अक्सर अय्याम तकरीबन 17 साल ये मदीने में गुजारे हैं। और मदीने में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम दिलों के हाकिम थे। और मदीने में नुमाइंदा कोई भी हुकूमत का, गवर्नर कोई भी हो, लेकिन जिसका रौब था, जिसकी बात का असर था, वो ज़ात इमाम रज़ा की थी। और ख़ुद इल्मी एतबार से इमाम रज़ा का क्या असर था और दिलों पे कैसे इमाम की हुकूमत थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ख़ुद फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक उस जब विलायत अहदी की जो गुफ्तगू हुई कि इमाम को वली अहद बना कर बुलाया गया और ज़ाहिरी तौर पर ढकोसलेबाजी की गई और दिखावा किया गया कि हाकिम बनाना चाहते हैं, वली अहद बनाना चाहते हैं और हुकूमत का नायब बनाना चाहते हैं, हाकिम का नायब उस सल्तनत, तो उसके सिलसिले में इमाम रज़ा फरमाते हैं मेरे नज़दीक उस विलायत अहदी की इस विलायत अहदी की कोई हैसियत नहीं है जिस वक्त मैं मदीने में होता था। इमाम वली अहद बनने के बाद फरमाते हैं हमारी नज़र में इस विलायत अहदी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जिस वक्त मैं मदीने में होता था तो मेरा हुक्म मशरिक़ व मग़रिब में नाफिज था, और जब मैं अपनी सवारी पर मदीने की गलियों और कूचों से गुज़रता तो लोगों के यहाँ मुझसे ज़्यादा महबूब शख्सियत कोई न थी। इसी तरीके से मदीने में आपकी इल्मी मरजइयत के सिलसिले में ख़ुद आप फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर बैठता था और मदीने में मौजूद साहिबान इल्म जब भी किसी मसले में फंस जाते थे तो मेरी तरफ रुजू करते थे और अपने मसाइल को मेरी तरफ इर्जा देते थे और मैं उनका जवाब देता था। इस तरीके से इमाम ने अपनी ज़िंदगी मदीने में गुजारी। और उसके बाद ये हिदायत और रहनुमाई का सिलसिला मुसलसल चलता रहा। अब इमाम ने जो 20 साल अपनी इमामत के गुजारे हैं, उसमें सियासी एतबार से 3 बड़े हाकिमों का दौर आता है, 3 बड़े हाकिमों का ज़माना आता है। एक हारून रशीद है, हारून अब्बासी है, एक मामून है और एक अमीन है। तीनों अपनी अपनी जगह खिलाफत बनी अब्बासिया के सिलसिले हुक्काम में एक वज़न रखते हैं, अपना एक मकाम रखते हैं सियासी एतबार से। इमाम की इमामत आने से कुछ अर्सा पहले ही छठे इमाम के दौर में ही बनी अब्बास की हुकूमत कायम हो चुकी थी। और ज़ाहिर सी बात है बनी अब्बास की जो हुकूमत कायम हुई उसमें पहला जो खलीफा अब्बासी था वो अबुल अब्बास सफ़ा था, और उसके बाद दूसरा मंसूर दवानिकी है। मंसूर दवानिकी वो बादशाह है कि जिसने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया था। उसके बाद 2 और बादशाह आते हैं, मेहदी और हादी। सन 132 हिजरी में खिलाफत बनी अब्बासिया का क़याम होता है, और उसके बाद हारून रशीद सन 170 हिजरी में हाकिम बनता है कि जो 183 हिजरी में यानी अपने तख्त हुकूमत पर बैठने के 13 साल के बाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को जहर से शहीद करता है। हारून का ही बेटा है अमीन। हारून की हुकूमत
सन 193 हिजरी तक चली है। यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 10 साल तक हारून जो है वो खलीफा अब्बासी रहा और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने उसके ज़माने में इमामत के फ़राइज़ को अंजाम दिया। और उसके बाद फिर छठा बादशाह आता है इस सिलसिले का, जिसका नाम है अमीन। अमीन 5 साल के लिए हाकिम होता है। 193 हिजरी में यानी अपने बाप के मरने के बाद हाकिम बनता है और 198 तक हाकिम रहता है, यहाँ तक कि अपने भाई मामून के लश्कर के ज़रिए से कत्ल कर दिया जाता है। हारून और के 2 बेटे अमीन और मामून, ये दोनों तख्त खिलाफत पर रसाई हासिल करते हैं, बैठते हैं, तख्त नशीन होते हैं, तख्त खिलाफत तक रसाई हासिल करने में कामयाब होते हैं। अमीन जो है वो अरब माँ के बतन से पैदा हुआ था, जिसका नाम था ज़ुबैदा बिनते जाफ़र बिन इब्न मंसूर। और इस एतबार से अगर देखा जाए तो अमीन सिलसिले खिलाफत अब्बासिया में वाहिद वो बादशाह है कि जो माँ और बाप दोनों की तरफ से हाशमी खलीफा था, हाशमी था, यानी अरब था और हाशमी खलीफा वो कहलाएगा, क्योंकि जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो रसूलुल्लाह के चचा थे, रसूल के ख़ानदान से थे, उसी ख़ानदान से सिलसिला चला है, तो उसी नस्ल से उसका बाप भी था और उसकी माँ भी थी। अमीन बहरहाल जज्बाती था और फ़ैसले जो हैं वो जल्दबाजी में करता था। ये सारे मसाइल थे, हुकूमत में इख्तिलाफ बरपा हो गया था। उसका दूसरा भाई जो मामून था, मामून की माँ ईरानी थी, एक ईरानी कनीज़ थी, वो एक तफसीली दास्तान है जिसको मैं इस वक्त नहीं बयान कर रहा हूँ। कनीज़ थी और उस कनीज़ के बतन से अमीन का भाई मामून जो है वो पैदा हुआ था। इन दोनों में रस्साकशी हुई, इन दोनों में लड़ाई हुई, इख्तिलाफ हुआ और किस तरीके से एक सियासी माहौल बनता है इसको मैं अगली क्लिप में बयान करता हूँ। वाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।